Hi everybody, I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik. Here I am with the second part of the lesson, his first flight. This is a motivational story of a seagull who is afraid of flying. It is only hunger which compelled him to fly, to take his first flight. In the first part, the seagull is afraid of flying. His brother and sister had already flown away. He attempted to fly but could not muster up courage to take a plunge due to expanse of sea and fear of his wings not supporting him. His parents threatened him that he will starve if he will not fly. So today we will see what happened next. अभी हम लोगों ने देखा था कि सीगल जो है वो उड़ान भरने से डर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि सामने जो सी दिखाई दे रहा है बहुत लंबा चौड़ा सी है, समंदर है और उसके जो पंख है वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। से उसे लग रहा है कि वो गिर जाएगा, मर जाएगा। इस डर की वजह से वो उड़ान नहीं भर रहा है। उसके पेरेंट्स उसे समझा रहे हैं कि इफ़ यू विल नॉट फ्लाई यू विल डाई बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। अगर तुम उड़े नहीं तो यू विल स्टार्व। तू क्या करेगा, भूख की वजह से मर जाएगा। बट ही वॉज नॉट रेडी टू मूव। एक्चुअली हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैव ऑलरेडी फ्लॉन अवे। उसके ब्रदर और सिस्टर जो है जिनके पंख ज़्यादा मजबूत नहीं थे, जो छोटे छोटे थे, स्टिल दे फ्लॉन अवे बट ही इज़ फीलिंग अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। तो आगे क्या होता है इस लेसन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग पेज नंबर 31 का जो पैराग्राफ है, सेकंड पार्ट, वो पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज़ अ स्टोरी और मोटिवेशनल स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं। जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस वॉज 24 आवर्स एगो से है, सेकंड पैराग्राफ ऑफ द लेसन। This was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau, midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous night. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है पैराग्राफ बच्चों। सो फोकस्ड ऑन लाइन द फर्स्ट पार्ट, वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट पार्ट. We have already seen that was 24 hours ago. Since then, nobody had come near to him. You are just watching in the picture that the seagull is lonely standing on the ledge. It was 24 hours had been passed. No one had come near to him. कोई भी उसके पास नहीं आया. The day before दिख रहा है चित्र में, he was standing alone on the ledge. Look here, you are watching this seagull in this picture, that young seagull was alone on his ledge and 24 hours had gone. No one had come near to him. Actually, the day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. चित्र में दिख रहा है, he had watched, उसने देखा, his parents are flying about with his brothers and sisters. उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ फ्लाई करते हुए उसने देखा है, with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight. वो पेरेंट्स उनको क्या कर रहे हैं, perfecting them in the art of flying. चित्र में दिख रहा है, the parents are perfecting them in the art of flying. वो उन्हें क्या दिखा रहे हैं,
उड़ना कैसे है वो अपने बच्चों को वो पेरेंट्स सिखा रहे हैं। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, चित्र में फ्लाई करते हुए दिख रहा है बच्चा और पेरेंट्स खड़े हैं बाजू में। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, उसी के साथ साथ उन्हें वो क्या सिखा रहे हैं, हाउ टू स्कीम। स्कीम का मतलब क्या है कि पानी के ऊपर से मूव लाइटली जस्ट अबाउ अ सरफेस, पानी को छूकर उड़ना, जिसे क्या कहते हैं, स्कीम करना कहते हैं। मतलब हम लोग क्या कहते हैं, गोता मारना जिसे कहते हैं। सो द पेरेंट्स वर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, एट द सेम टाइम दे वर टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स। दिख रहा है वेव्स पर वो छोटा बच्चा किस प्रकार से स्कीम कर रहा है, मतलब गोता लगा रहा है। उसी के साथ साथ वो उन्हें क्या सिखा रहा है, देखो स्कीम करना तो सीख रहे हैं बच्चे, उसी के साथ साथ द आर्ट ऑफ फ्लाइंग सीख रहा है बच्चा। उसी के साथ साथ द पेरेंट्स आर टीचिंग देम हाउ टू डाइव फॉर फिश। देखो चित्र में दिख रहा है द सीगल हैव डाइव फॉर द फिश, उसके बिक में मतलब उसकी चोंच में क्या दिखाई दे रहा है आपको, फिश दिखाई दे रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है, हु इज़ वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स, यंग सीगल वॉज वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स, हाउ द पेरेंट्स वर टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द आर्ट ऑफ फ्लाइट, how to scheme the waves, and how to dive for the fish. All these three activities were taught to the young seagulls by his parents. His brother was scheming the waves, his brother was flying, his brother was diving for a fish. So all these things were taught by his parents to his brothers and sister. At the same time, he had in fact seen his older brother catch his first hearing and devour it standing on the rock. उसने क्या देखा, चित्र में दिख रहा है, his parents were teaching his brothers and sister how to scheme the waves, how to take a flight, how to dive for the fish. All these things are, you are watching all these things on this in this picture. And look how his older brother कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग, दिख रहा है चित्र में, उसने एक पहला उसका हियरिंग जो है, हियरिंग का मतलब क्या है, हियरिंग नहीं, हेरिंग जो है, हेरिंग का मतलब क्या है, सॉफ्ट फिन्ड सी फिश। सॉफ्ट फिन, जिसके फिन बहुत, फिन मतलब पंख जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ऐसा छोटा सा फिश उसने पकड़ा है। तो ये चित्र किसने देखा, दिस वॉज सीन बाय यंग सीगल, दैट हाउ हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवॉर इट। उसी के साथ साथ वो क्या कर रहा है, उसे डिवॉर कर रहा है। उसने कैच किया है, उसके ओल्डर ब्रदर ने हेयरिंग मतलब फिश को कैच किया है, एंड हाउ ही डिवॉर इट, दिख रहा है अगले चित्र में आपको कि वो क्या कर रहा है, डिवॉर कर रहा है मतलब खा रहा है। वो अपना फर्स्ट फिश जो उसने पकड़ा हुआ वो खा रहा है। एंड व्हाट्स हैपन, हिज वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, उसके जो पेरेंट्स है उसके आजू बाजू में सर्कल लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, रेजिंग अ प्राउड कैकल, और ज़ोर ज़ोर से वो क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे, आवाज़ कर रहे हैं, खुश होकर, प्राउड फील कर रहे, प्रोत्साहित कर रहे अपने बच्चे को, क्योंकि ही हैड कॉट द फर्स्ट हेयरिंग एंड डिवोरिंग इट। सो हिज पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी। वो बहुत क्या कर रहे हैं, ज़ोर से चिल्ला कर उसे क्या कर रहे हैं, एंकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे, दिख रहा है चित्र में आपको। देखा अभी हम लोगों ने दैट यंग सीगल, क्या किया यंग सीगल ने, ही वॉज वॉचिंग दैट हाउ हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग एंड डिवॉर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। उसके पेरेंट्स जो है, उसके माता पिता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, एंड उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। एंड ऑल द फैमिली
एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू। बहुत बिग प्लेटू जो पठार है, समंदर के बीच में जो पठार है, उस पर सारी फैमिली क्या कर रही है? दे वेयर मिड वे डाउन, दे वेयर वॉकिंग अबाउट द प्लेटू। उस प्लेटू पे, प्लेटू का मतलब क्या है? एक बड़ा सा पठार जो समंदर के बीच में होता है, दिखाई दे रहा है चित्र में। उस पर वो सब फैमिली वॉक कर रही है मिड वे डाउन अपोजिट द क्लिफ टॉन्टिंग हिम। और वो बराबर क्लिफ के बराबर अपोजिट है। क्लिफ जानते हो ना? अ यंग हाई स्टीप फेस ऑफ अ रॉक, समुद्र किनारे का ऊंचा उभरा हुआ भाग, जिस पर कौन खड़ा है? जिस पर हमारा यंग सीगल खड़ा है। तो वहाँ पे वो दिख रहा है और ये सब उसे क्या कर रहे हैं? दे आर टॉन्टिंग हिम। टॉन्टिंग कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? चिढ़ा रहे। सो दे वेयर टॉन्टिंग द यंग सीगल फॉर हिज कॉवर्ड आइज। क्या कैसा है वो क्या कैसा कैसा है हमारा यंग सीगल? उनके हिसाब से वो कॉवर्ड आइज है। वो सब देखो उसे टॉन्टिंग कर रहे, चित्र में दिखाई दे रहा है। सब उसे टॉन्टिंग कर रहा है और दूसरे चित्र में दिख रहा है यंग सीगल उनकी तरफ देख रहा है और ये सब उसे टॉन्टिंग कर रहे हैं। चित्र में बैठा हुआ है। क्लिफ टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कॉवर्डिस। दिख रहा है क्लिफ में अकेला ही, क्लिफ चित्र में दिख रही है आपको क्लिफ। ही वॉज सिटिंग ऑन द क्लिफ एंड ऑल द पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स वेर टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कॉवर्डिस। सो in the next picture we have seen that the sun was now ascending in the sky. सन जो है वो सुबह हुई है, रात तो पूरी निकल गई है, सुबह हुई है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। सन जो है हमारा सूरज जो है वो, द सन वॉज अपियरिंग ऑन द वास्ट स्काई। सूरज पृथ्वी पर आगमन हुआ है सूर्य का। एंड द इट इज़ ब्लेजिंग ऑन हिज लेज। वो ब्लेजिंग कर रहा है, तप रहा है। धीरे धीरे सूरज क्या होता जाता है? तप्त होता जाता है। इट इज़ ब्लेजिंग, ब्लेजिंग मतलब तपना। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज विच इज़ फेसिंग द साउथ। वो साउथ की तरफ वो क्लिफ पर खड़ा है। ही फेल्ड द हीट। उस छोटे से सीगल को बहुत ज़्यादा क्या लग रही है? हीट लग रही है। हीट का मतलब क्या है? उष्णता ज़्यादा लग रही है। क्यों उष्णता ज़्यादा लग रही है? बहुत ज़्यादा वो तप रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। रात भर से उसके पास कोई नहीं आया था। फ्रॉम 24 hours no one have come near to him, so he was feeling hot because he had not eaten since the previous नाइटफॉल। पूरे रात भर से उसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए जो उभरता हुआ सूरज ऊपर जो आ रहा है उसकी जो उष्णता है उसे बहुत ज़्यादा तप्त कर रही है। वो ज़्यादा हॉट या हीट फील कर रहा है बिकॉज ही हैड नॉट ईटन फॉर लास्ट 24 hours। आगे क्या होता है अगले पार्ट में हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू बच्चों, अगला पार्ट हम लोग कल देखेंगे।